Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 26 और 27 नवंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम विच एडिशन ऑफ बंगाल ग्लोबल समिट विच एडिशन ऑफ बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट वाज हेल्ड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ज़रा बताओ। तो याद रखेंगे भी, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया था। 7वां एडिशन था इस बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का। 21 एंड 22 नवंबर को ये ऑब्जर्व करा गया था कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। करेक्ट। और इसका एम क्या था यहाँ पर, ताकि जो भी आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, उनको एक साथ लाया जाए एंड आगे हम अपने कैसे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को, बिजनेस को आगे बढ़ा सके इन अ फ्रेंडली स्टेट इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है। फिर यहीं पे हम देखेंगे 188 MOUs LOIs साइन किए गए। करेक्ट। एंड ड्यूरिंग दिस 7th एडिशन चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, इन्होंने अनाउंस किया कि 3.76 लाख करोड़ की हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस लेटर ऑफ इंटेंट्स एंड MOU। इसी के अलावा हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्लेज किया कि 20,000 करोड़ की हम इन्वेस्ट करेंगे वेस्ट बंगाल में। ITC इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड लॉन्च द ITC मार्स एप्लीकेशन। फिर यहीं पे MOU साइन किया गया बिटवीन NSE एंड वेस्ट बंगाल, ताकि फंड रेजिंग कर सके फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। राइट। यहीं पे फिर अमेजॉन एंड वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जहाँ दे केम टुगेदर एंड साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ठीक। फिर वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगी, ममता बनर्जी। कैपिटल क्या है, कोलकाता। गवर्नर कौन रहेंगे, CV आनंदा बोस। अगर नेशनल पार्क की बात करूं तो सुंदरवन नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, जलपड़ा नेशनल पार्क, ये सब यहाँ पे रहेंगे। राइट। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनी, तो कोलकाता में बनी, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। किस रिवर के नीचे बनी, ये आप मुझे होमवर्क में बताओ। ठीक है। किस रिवर के नीचे, किस रिवर के बेड में हमें पहली अंडर वाटर मेट्रो देखने को मिलती है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। फिर इसी के अलावा अगर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछूं मैं, जैसे बताओ अभी रिसेंटली वो पहली वीमेन कौन बनी जिन्होंने स्काई डाइव की फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइव करने वाली वो पहली वीमेन कौन बन गई है, वो है शीतल महाजन। वो कौन है, शीतल महाजन। देन किस कंट्री ने होस्ट किया सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट।
किसके द्वारा किया गया? हमारी इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया। ठीक। साइट्स 2.0 ये प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देन सनफ्लावर इनिशिएटिव, सनफ्लावर इनिशिएटिव किस एयरपोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया सनफ्लावर इनिशिएटिव को। राइट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज सूर्य किरण। ये हो अभी इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है? सूर्य किरण। तो इंडिया एंड नेपाल के बीच में एक्सरसाइज सूर्य किरण कंडक्ट कराई जाती है और इसमें भी याद रखेंगे इनकी आर्मीज के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। ठीक है, फिर ये 24 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज कंटिन्यू होगी और इस एक्सरसाइज का भी कौन सा एडिशन था? 17th एडिशन हमें देखने को मिला। लोकेशन क्या रहेगी, कहाँ पे हुई ये एक्सरसाइज? तो ये इस बार उत्तराखंड में हमें देखने को मिली, इंडिया में। ठीक है, ये तो थी 17वीं एक्सरसाइज। अगर मैं 16वीं की बात करूँ तो लोकेशन क्या रहेगी? तो ये नेपाल में हुई थी लास्ट ईयर 2023 में और 2022 में। ठीक, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो इंडिया की तरफ से जो बटालियन थी वो है कुमोन रेजिमेंट। 354 पर्सनल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया एंड नेपाल आर्मी की तरफ से था 334 पर्सनल जो कि तारादल बटालियन से है। करेक्ट। और याद रखेंगे हर साल इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है 2011 से, मतलब पहली बार फर्स्ट एडिशन बोले या फिर इनॉग्रल एडिशन आपका कब था? 2011 में। चलिए नेक्स्ट, किस कंट्री विच कंट्री बिकेम द चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024? तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरमैनशिप रहेगी, ये जो एक इंटरनेशनल बॉडी है ऑन शुगर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, इसकी चेयरमैनशिप किस कंट्री के पास रहेगी? तो हमारी इंडिया के पास रहेगी 2024 के लिए। कि शुगर सेक्टर को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड जो ग्लोबली क्या स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे वो अब इंडिया के द्वारा करा जाएगा। राइट। इंडिया में देखें तो यूपी बहुत ज़्यादा फेमस है इन दिस सेक्टर, सबसे ज़्यादा हमें वहीं पे देखने को मिलता है। करेक्ट। एंड यहीं पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर यूपी में जो है, इन्हीं के द्वारा हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने काफ़ी अलग कंट्री के साथ भी कोलैबोरेट किया है, जैसे इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इजिप्ट एंड फिजी। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑफ शुगर प्रोडक्ट्स एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका शुगर प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर कंज्यूमर की बात करें तो 15% शेयर है हमारे पास वर्ल्ड का और प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास 20% रहेगा प्रोडक्शन का। फिर इसी के साथ साथ एक और आ जाता है एथेनॉल ब्लेंडिंग। राइट। और अगर मैं एथेनॉल की बात करूं तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट है इन एथेनॉल प्रोडक्शन, इन एथेनॉल प्रोडक्शन। फिर यहीं पे टॉप पर कौन है? यूएसए, फॉलोड बाय ब्राजील ऑन सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पे आ जाता है हमारा इंडिया। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट केन प्राइस एंड ये जो अपने फार्मर्स को भी ना एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल अपना शेयर देते हैं हम इंडिया में। ठीक है, जो फार्म करते हैं शुगर प्रोडक्ट्स को, जो शुगर केन को। फिर इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखेंगे, इंडिया ने अभी अचीव किया है 12% एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल इन 22-23। यहीं पे हम इसको बढ़ा के कितना करना चाहते हैं? 15% करना चाहते हैं फॉर द ईयर 23-24, मतलब नवंबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच में यही हम 15% तक ले जाने की बात कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। फिर अगर आईएसओ की मैं बात करूं, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, होसे और यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे। इसको इस्टेब्लिश 1937 में किया गया, हेडक्वार्टर लंदन यूके एंड 88 मेंबर कंट्रीज यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, तो ये है यहाँ पे इंडिया ने अज्यूम की चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल शुगर इंडस्ट्री बॉडी आईएसओ, जो कि है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, किस साल के लिए? 2024 के लिए। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे एक दो चीज़ें और मैं पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा वीमेन लेड स्टार्टअप्स किस सिटी में हमें देखने को मिलते हैं? बेंगलोर में देखने को मिलते हैं, बेंगलुरु में। राइट, वीमेन लेड स्टार्टअप्स बेंगलुरु में हमें देखने को मिलते हैं। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कहाँ रहेगा? इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ये कहाँ पे है? शिलोंग में, शिलोंग में। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, आई रिपीट, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड। राइट, ये एक आपका कैंपेन है, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, एवरी राइट
फॉर एवरी चाइल्ड। सी बकथॉन, राइट, इसको भी जीआई टैग मिला। ये कहाँ का प्रोडक्ट है? तो ये लद्दाख का प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगर पूछा जाए 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर होगा? गोवा में होगा। ठीक, फिर 2 डे लॉन्ग ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2 दिन लंबी कहाँ पर हुई? अहमदाबाद में हुई। कहाँ पर? अहमदाबाद में। नेक्स्ट इंटरनेशनल अफेयर्स, राइट। अभी यूएनईपी एमिशन गैप रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे डाटा रिलीज किया गया अबाउट दिस एमिशन गैप रिपोर्ट। ये 14th एडिशन थी एमिशन गैप रिपोर्ट की। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पे टेम्परेचर हिट अ न्यू हाइज येट द वर्ल्ड फेल्स टू कट एमिशन अगेन, राइट। ये डाटा रिलीज किया गया कि न्यू हाई टेम्परेचर हिट किया और फिर भी हम जो एमिशंस हैं उसको ख़त्म करने से नहीं रोक पा रहे हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि लोग और ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, राइट। ये सारा डाटा यूएनईपी के द्वारा रिलीज किया गया। फिर इसी से याद रखेंगे, इन्होंने बताया, यूएनईपी ने बोला कि अगर हम जो वर्ल्ड को है ना, दे मस्ट रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, मतलब उनको करना ही पड़ेगा बाय एटलीस्ट 28 to 42% बाय 2030 टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 2 डिग्री सेल्सियस एंड 1.5 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। अगर नहीं करते हैं तो ये टेम्परेचर और राइज होगा। और यहाँ पे साथ ही साथ एक और डाटा रिलीज किया गया कि हमारे पास सिर्फ 14% चांस है कि हम टेम्परेचर को लिमिट कर सकें टू जस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सारे बेस्ट केस सिनेरियो को लेके चलते हैं ना, हम अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करना चाहते हैं कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े इन द बेस्ट केस सिनेरियो, तो हमारे पास बस सिर्फ 14% चांस है कि हम इसको अचीव कर पाएंगे। ठीक, फिर इसी के साथ साथ ये तो किसके द्वारा रिलीज की गई थी? यूएनईपी के द्वारा। यहाँ पे फाइंडिंग्स क्या है? रिपोर्ट वांट्स that if countries fail to reduce the greenhouse gas emissions then the global temperature बढ़ जाएगा by 2.5 to 2.9 डिग्री सेल्सियस above the pre-industrial level। also यहाँ पे बताया गया कि the report emphasized that only way to prevent exceeding 1.5 degree Celsius limit is to accelerate the implementation action in this decade, and if greenhouse gas emissions reduction is delayed then this will lead to a greater future reliance on carbon dioxide removal from the atmosphere। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे याद रखेंगे एक एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट होती है जिसपे हम बात करते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, क्या प्लानिंग हो रही है और कितनी इन्वेस्टमेंट का गैप हमें देखने को मिल रहा है। फिर दूसरा आ जाता है एमिशन गैप रिपोर्ट कि कितना एमिशन हमें देखने को मिल रहा है इन द एटमॉस्फेयर। और फिर आ जाता है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट कि जो टॉप फॉसिल फ्यूल है कि इसकी तो और एक्सट्रैक्शन की बात की जा रही है, राइट। तो ये 3 रिपोर्ट आती हैं, 3, ये एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट एंड प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। तीनों किसके द्वारा? यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इनको रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं फिर आईजीएल। इन्होंने पार्टनर किया किस बैंक के साथ? टू एनेबल डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शन इन दिल्ली एनसीआर रीजन। ई रुपी से ट्रांजैक्शन करने के लिए अभी रिसेंटली किस बैंक ने टाई अप किया? आईजीएल के साथ, तो वो है इंद्रसिंध बैंक ने। आईजीएल क्या है? इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, राइट। तो हम देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर रीजन में जो आपके सीएनजी के प्लांट्स हैं, सीएनजी के स्टेशंस हैं, वहाँ पर आप इजीली पेमेंट कर पाएंगे विद दिस डिजिटल रुपी। अपनी जो डिजिटल रुपी मोबाइल एप्लीकेशन है उससे क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड आप इजीली यहाँ से पेमेंट को कर पाएंगे। डिजिटल रुपी की बात करें, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, 2022 में लॉन्च किया गया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट। एंड ये एक लीगल टेंडर को रिप्रेजेंट करता है। 2 सेगमेंट में आया था, होलसेल एंड रिटेल। एंड यहाँ पर आपका जो ये ई रुपी है 2 फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, P2P एंड P2M। P2P है पीयर टू पीयर एंड P2M है पीयर टू मर्चेंट फैसिलिटी। फिर यहीं पे अगर मैं आईजीएल की बात करूं, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड की, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? कमल किशोर चैतवाल जी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा, 1998 में इस्टेब्लिश किया गया। फिर इंडसइंड बैंक की मैं बात करूं, एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? सुमंत कथपालिया। हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं आरबीआई सुपरसीड्स अभुदया कोऑपरेटिव बैंक बोर्ड एंड अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर। इसका मतलब अभुदया कोऑपरेटिव बैंक के जो बोर्ड था ना वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, राइट। उनकी पुअर गवर्नेंस थी और इसी वजह से उनको यहाँ पर अभी हटा दिया गया है एंड उनकी जगह किनको अपॉइंट किया गया एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बैंक? वो रहेंगे सत्यप्रकाश पाठक, राइट। इनको अभी अपॉइंट किया गया एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बैंक जो कि है अभुदया कोऑपरेटिव बैंक।
करेक्ट। एंड आरबीआई के द्वारा ये स्टेप लिया गया क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नेंस थी वो प्रॉपर गवर्नेंस नहीं हो पा रही थी, काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही थी। फिर इसी के साथ साथ आरबीआई ने भी कुछ बैंक्स पर मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज की है, जैसे सिटी बैंक पर, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इंडियन ओवरसीज बैंक पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई ने इंपोज की सिटी बैंक पे 5 करोड़ की पेनल्टी, बैंक ऑफ बड़ौदा पे 4.34 की पेनल्टी एंड इंडियन ओवरसीज बैंक पे 1 करोड़ की यहाँ पे पेनल्टी इंपोज की गई। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं। मास्टर कार्ड ने भी पार्टनर किया यूजीआरओ कैपिटल के साथ ताकि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं इंडिया में उनकी फाइनेंसिंग में हेल्प की जा सके, राइट। इससे जो टारगेट रहेगा वो क्या है मास्टर कार्ड का, कि 1 बिलियन पीपल एंड 50 मिलियन माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस को, जिसमें हम 25 मिलियन फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को लाना चाहते हैं इनटू द डिजिटल इकोनॉमी बाय 2025। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स अगर और कुछ करंट अफेयर्स देखें, फॉर एग्जांपल बताओ, अभी ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कहाँ पर हुई थी? अबू धाबी में, ठीक है। फिर इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग? इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? तो इंडिया आ जाता है 3rd पोजीशन पे इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग, राइट। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी आरबीआई ने एक्सिस बैंक पे कितनी मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज करी थी? तो ये थी 90.92 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी यहाँ पे अनवेल की थी, इंप्लीमेंट की थी। फिर इसी के साथ साथ बताओ, इंडिया का टारगेट क्या रहेगा टू बिकम द वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय विच ईयर? तो 2027 तक इंडिया का टारगेट रहेगा वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का। और इंडिया ने ही अभी $4 ट्रिलियन जीडीपी का मार्क भी टच करा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील प्रेजेंटेड नेशनल मेटलर्जिकल अवार्ड 2022 के लिए फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटलर्जिस्ट इन आयरन एंड स्टील सेक्टर। तो जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड, ये मेटलर्जिस्ट को अवार्ड दिया जाता है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन आयरन एंड स्टील सेक्टर। और इस बार 4 कैटेगरी में 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर कमाची मुदाली जी को, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी, then award for research and development in iron and steel sector डॉक्टर रामेश्वर शाह, एंड यंग मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2 लोगों को दिया गया, डॉक्टर निलॉय कुंडू एंड ए मुथु मैनिकम, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया। और अगर ये जो नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड की बात करें, 1962 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था एंड किनको दिया जाता है? मेटलर्जिस्ट को, जो कि मेटलर्जिकल फील्ड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अभी महिंद्रा ग्रुप के अनीश शाह को अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ फिक्की 2023-24 के लिए। तो मार्क करके चलेंगे, डॉक्टर अनीश शाह, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ महिंद्रा ग्रुप, इनको नेम किया गया प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ फिक्की फॉर 2023-24। ये सक्सीड किनको करेंगे? सुब्रकांत पांडा जी को ये सक्सीड करेंगे। फिर ओपन एआई के अब सीईओ कौन अपॉइंट कर लिए गए हैं? कई बार चेंज होने के बाद सैम ऑल्टमैन को वापस ही कर लिया गया, बट देयर इज अ ह्यूज चांस कि ये आगे फ्यूचर में फिर बदले जा सकते हैं। देन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए एसबीआई के? वो है विनय टॉनसे। फिर इसी के साथ साथ एको ने किनको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया? आर माधवन को, राइट। कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग? लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए? लूक फ्राइडमैन, ठीक। फिर एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं कोटक बैंक के? वो है अशोक वासवानी। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप? एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप की मेडल टैली में किस कंट्री ने टॉप किया? वो है हमारी इंडिया ने, राइट। इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया है, करेक्ट। इंडिया के कितने मेडल्स रहेंगे अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए इन दिस मेडल टैली? तो इंडिया के 9 मेडल्स रहेंगे, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, करेक्ट। एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। साउथ कोरिया 2nd पोजीशन पे आ जाता है विद 5 मेडल्स, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। और चाइना 3rd पोजीशन पे आ जाता है विद 4 मेडल्स, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। ये कब से कब तक हुआ था? 16 से लेके 25 नवंबर तक आपका ये एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप हुई। लोकेशन क्या रहेगी? बैंकॉक, थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आपका यहीं पर, अगर हम आपसे 1-2 चीज़ और पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस 16 नवंबर को ही नेशनल प्रेस डे, 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, 17 को ही नेशनल एलिप्सी डे, 17 को ही हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे, 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे, 19 को ही वर्ल्ड टॉयलेट डे, फिर 20 नवंबर को अफ्रीकन इंडस्ट्रियलाइजेशन डे,
एंड 19 नवंबर को ही वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे भी हम ऑब्जर्व करते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर ऑस्ट्रेलियन वीमेन कैप्टन मेघन लेनिन, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया वीमेंस क्रिकेट टीम की ये कैप्टन रहेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं पाकिस्तानी ऑलराउंडर इमाद वासिम, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, राइट। सैयद इमाम वासिम हैदर 34 साल के हैं एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। 2015 में इन्होंने डेब्यू किया था इन ओडीआई अगेंस्ट श्रीलंका। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। अभी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन ऑब्जर्व किया गया 25 नवंबर को, एंड इट इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। वीमेन के खिलाफ जो वायलेंस होती है उसके खिलाफ यहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कराने की बात की गई ऑन 25 नवंबर, ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर इसकी थीम रहेगी यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स, ये थीम रहेगी, मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाता है फिर रजनीश गोयल, इनको अपॉइंट किया गया एज द 40th चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका। तो 40वें चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं कर्नाटका के, वो है रजनीश गोयल, करेक्ट। ये जब तक रिटायर नहीं हो जाती या जुलाई 2024 तक इनको अपॉइंट किया जाएगा। एंड यहाँ पे कौन किन को सक्सीड करेंगे ये, तो ये वंदिता शर्मा को सक्सीड करेंगे टू बी द 40th चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट आ जाता है फिर वो कौन सी स्टेट है जिन्होंने अभी 25 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया, 25 नवंबर डिक्लेयर कर दिया एज द नो नॉन वेज डे, मतलब कोई भी नॉन वेज नहीं खाया जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उस दिन। ये है 25 नवंबर को एंड यूपी के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बोला कि 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे ऑब्जर्व किया जाएगा और 25 नवंबर को याद रखेंगे इंटरनेशनल मीटलेस डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है 144th बर्थ एनिवर्सरी साधु थानवरदास लीलाराम वासवानी जी की, करेक्ट। इनका जन्म 25 नवंबर में हुआ था 1897 में एंड इन्होंने मीरा मूवमेंट भी स्टार्ट करी थी। इन्होंने सेंट मीरा स्कूल्स भी स्टैब्लिश किया था हैदराबाद तेलंगाना में। एंड दर्शन म्यूजियम जो कि पुणे महाराष्ट्र में, वो भी इन्हीं की मेमोरी में रहेगा, राइट। और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर जो 2024 में भी 144th बर्थ एनिवर्सरी थी साधु थनवरदास लीलाराम वासवानी की, इस दिन हमने नो नॉन वेज डे डिक्लेयर किया गया, राइट, 25 नवंबर को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। 7th एडिशन ऑफ बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुई। सूर्य किरण की बात करें 17वां एडिशन है। इंडिया नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो कि उत्तराखंड में हुई। देन इंडिया बिकेम द चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024। यूएनईपी एमिशन गैप रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि अगर हम अपने एफर्ट्स को बढ़ाते नहीं है तो ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करेगी हमारे वर्ल्ड को। इंडसइंड बैंक की बात करें एंड आईजीएल इन्होंने पार्टनर किया टू एनेबल डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शंस इन दिल्ली एनसीआर। देन आरबीआई ने सुपरसीड किया अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक बोर्ड को बिकॉज ये अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे थे। एक नया एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया आरबीआई के द्वारा। देन मास्टरकार्ड ने पार्टनर किया यूग्रो कैपिटल के साथ टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। देन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने प्रेजेंट किया नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022 फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटलर्जिस्ट इन आयरन एंड स्टील सेक्टर। नेक्स्ट महिंद्रा ग्रुप के अनीश शाह, इनको नेम किया गया एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ फिकी फॉर 2023-24। 2023 एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप की बात करें तो इंडिया ने टॉप किया मेडल टैली विद 9 मेडल्स। ऑस्ट्रेलियन वीमेन कैप्टन मेघा लेनिन इन्होंने अनाउंस किया रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। पाकिस्तान ऑलराउंडर इमाद वासिम इन्होंने रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन ऑब्जर्व किया गया 25 नवंबर को। रजनीश गोयल को नेम किया गया एज द 40th चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका। उत्तर प्रदेश ने डिक्लेयर किया 25 नवंबर को एज द नो नॉन वेज डे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे जो कि आपकी रिवीजन लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली स्worn इन एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो चीफ इंफॉर्मेशन कौन अपॉइंट किए गए हैं सीआईसी के अभी रिसेंटली, वो रहेंगे हीरालाल समारिया, राइट। इन्होंने किनको रिप्लेस किया या किनको सक्सीड करेंगे, यशवर्धन कुमार सिन्हा को ये सक्सीड करेंगे जिनका टर्म 3 अक्टूबर को एंड हो गया था, राइट। फिर इसी के साथ साथ 7th एडिशन ऑफ पेरिस मास्टर्स टाइटल किन्होंने जीता, वो है नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द क्रिकेट टीम जिन्होंने रिसेंटली जीता अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को। 2023-24 का ये टाइटल रहेगा, तो वो कौन सी है, पंजाब टीम ने अपना पहला टाइटल जीत लिया। पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे, राइट, पंजाब में ही ये फाइनल हुआ था एंड यहाँ पे पंजाब क्रिकेट टीम को 80 लाख रुपए मिलेंगे बोथ फ्रॉम बीसीसीआई एज वेल एज पंजाब क्रिकेट बोर्ड। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये 16वां एडिशन था ये 16वां एडिशन था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का और पहली बार जीता है पंजाब की टीम ने अभी। और इन्होंने किनको हराया, बड़ौदा की टीम को इन्होंने फाइनल में हरा के इसको जीत लिया है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में स्टार्ट किया गया था इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा मिलके। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है एंड प्रोजेक्ट हेड रहेंगे अजय माथुर। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है इसमें से बताओ ABC में से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। तो याद रखेंगे ABC, यहाँ पे A और B ठीक रहेगा, C गलत है। A कह रहा है कि अभी 6ठी असेंबली हुई इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, भारत मंडपम में हुई, न्यू दिल्ली में, और इंडिया ने होस्ट की, तो बिल्कुल सही। बी कह रहा है ISA ने अनाउंस किया ग्लोबल सोलर फैसिलिटी टू स्टिमुलेट एंड इन्वेस्टमेंट इनटू सोलर पावर प्रोजेक्ट एंड इन्होंने यहाँ पे $35 मिलियन का कैपिटल रेज किया, तो बिल्कुल सही। सी कह रहा है पेरू अभी 97th मेंबर बन गया था ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो बिल्कुल नहीं, वो था चिली एंड ये 97th नहीं 95th मेंबर बना था अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो अब ठीक है, ये 3 ऑप्शन। फिर आ जाता है कॉलिंस डिक्शनरी ऑफ द ईयर का, या फिर कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कॉलिन वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का क्या बना, वो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, अभी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डाटा, इंडियंस कौन से नंबर पे आते हैं एज द मोस्ट हार्ड वर्किंग ग्लोबली। तो इंडियंस 6ठे नंबर पे आ जाते हैं एज द मोस्ट हार्ड वर्किंग ग्लोबली। इनका जो पर आवर का जो डाटा रहेगा वो है 47.7 आवर्स पर वीक का, राइट। और अभी अगर आपको याद हो तो नारायण मूर्ति ने, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर है, एक स्टेटमेंट दी थी जिन्होंने उसमें बोला कि इंडियंस को 70 आवर्स वर्क करना चाहिए पर वीक, राइट। इससे काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई थी, काफ़ी लोगों ने इसको सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों ने इसको सपोर्ट में नहीं आए, करेक्ट। लेकिन इसी के हिसाब से देखें तो इंडियंस का जो डाटा आता है ना वो है 47.7 आवर पर वीक। यहाँ पे टॉप किसने किया है वो हम देखते हैं, तो चाइना शोज दैट जो इंडियंस हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं किन कंट्री से, चाइना के लोगों से ज़्यादा वर्क करते हैं, वियतनाम से, मलेशिया से, फिलीपींस से, इन सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे देखते हैं इंडियंस वर्क कर रहे हैं। इवन USA UK से भी ज़्यादा इंडियंस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, राइट। मार्क करके चलेंगे, तो 6ठे नंबर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल सिंपोजियम ऑन प्रमोटिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थ्रू कोऑपरेटिव्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अगर हम इसकी बात करें, पूछा जा रहा है कौन सा ठीक रहेगा, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेंगे। द 1 डे नेशनल सिंपोजियम ऑन प्रमोटिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थ्रू कोऑपरेटिव्स ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इन न्यू दिल्ली, बिल्कुल ठीक। दूसरा कह रहा है ड्यूरिंग दिस इवेंट अमित शाह ने लॉन्च किया भारत ऑर्गेनिक्स, ये एक ब्रांड रहेगा NCOL का जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का काम करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जा सकता है कि उस ब्रांड का नाम बताओ जो कि अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा सके, तो वो है भारत ऑर्गेनिक्स। और छठा है 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को इस भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के अंदर प्रमोट किया जाएगा, जो कि है तूर दाल, चना दाल, शुगर, राजमा, बासमती राइस एंड सोन मसूरी राइस। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है इंडियन फिनिशेस सेकंड इन एशियन आर्चरी चैंपियनशिप। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप की बात करें तो इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी, इंडिया आ जाता है सेकंड पोजीशन पे 7 मेडल के साथ। 7 में से अगर मेडल्स देखें तो 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज रहेंगे एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में। ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी ये चैंपियनशिप, 3 से लेके 10 नवंबर के बीच में ये आपकी चैंपियनशिप हुई थी, करेक्ट। फिर यहीं पे अगर मेडल टैली की बात कर रहे हैं तो साउथ कोरिया की यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन रहेगी विद 11 मेडल्स। इंडिया की 7th पोजीशन पे इंडिया की सेकंड पोजीशन रहेगी विद 7 मेडल्स और कजाकिस्तान की 3rd पोजीशन विद 3 मेडल्स। यहीं पे देखेंगे प्रनीत कौर, आदिति स्वामी, प्रियांश और ये सारे लोग, इनको यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है। तो 3 गोल्ड मेडल हम देख रहे थे कि 3 गोल्ड मेडल हैं, तो 1, 2 और 3, ये 3 आपके गोल्ड मेडल रहेंगे, याद रखेंगे। तो ये थी आपकी एशियन आर्चरी चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में हुई 3 से 10 नवंबर के बीच में। इंडिया ने सेकेंड फिनिश किया इन द मेडल टैली विद 3 गोल्ड मेडल्स। नेक्स्ट पर आते हैं नेशनल एजुकेशन डे। 11 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एजुकेशन डे एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। आई रिपीट, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है भारत रत्न अवॉर्डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। 2023 में हमने 135वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है इनकी। और पहली बार अगर पूछा जाए कि नेशनल एजुकेशन डे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 2008 में इसको पहली बार ऑब्जर्व करा गया था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, वो कौन सी स्टेट है जो कि एमर्ज कर रही है एज द लीडर इन द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग जुलाई सितंबर क्वार्टर। तो याद रखेंगे वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया, ये एमर्ज करके आई एज द टॉप स्टेट विद द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, करेक्ट। इसके बाद आ जाती है गुजरात।
गुजरात के बाद आ जाता है आपका कर्नाटका। अगर नंबर के हिसाब से देखें तो 25.85 लाख करोड़ की हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिली इन इक्विटी, राइट, जो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से 7.47 लाख करोड़ कहाँ से आई? ये आई महाराष्ट्र से। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। फिर फोर्थ नंबर पे कौन सी आ जाती है? दिल्ली। When was वर्ल्ड अर्बेनिज्म डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब? वर्ल्ड अर्बेनिज्म डे बोले या फिर इसको मैं बोलूं वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे। टाउन प्लानिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये जनरली ऑब्जर्व किया जाता है 8 नवंबर को, राइट। और इसकी थीम याद रखेंगे, लर्न ग्लोबली अप्लाई लोकली। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड अर्बेनिज्म डे एज वेल एज वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे की। नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल लीगल सर्विस डे ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया? तो नेशनल लीगल सर्विस डे हम 9 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस इंडिया, राइट। और इस बार 29वां नेशनल लीगल सर्विस डे हमने ऑब्जर्व करा, मार्क करके चलेंगे इसको। फिर इसी के साथ बताओ, अभी रिसेंटली वर्ल्ड फूड इंडिया ये एक समिट हुई थी, कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई। किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई? पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट की गई। फिर इसी के साथ साथ ग्लोबल हाउसिंग प्राइस राइज, ये एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें इंडिया की कौन सी सिटी 4th पोजीशन पे आती है? तो मुंबई सिटी ने यहाँ पे 4th पोजीशन सिक्योर की इन द ग्लोबल हाउसिंग प्राइस राइज। फिर अभी किस कंट्री ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री अलाउ कर दिया टू बूस्ट टूरिज्म? वो है थाईलैंड। फिर इसके अलावा वियतनाम एंड इवन श्रीलंका ने यहाँ पे वीजा फ्री एंट्री अलाउ कर दिया इंडियंस को। नेक्स्ट बात कर रहे हैं नेम द एक्टर जिनको अभी अपॉइंट किया गया एज द यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बाय एनपीसीआई। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी पंकज त्रिपाठी को अपॉइंट किया था एज देयर यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर, मतलब यूपीआई की अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि ये पेमेंट के तौर पर बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है और इससे जो आप पेमेंट करेंगे वो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी। तो ये भरोसा जताने के लिए जनरल पब्लिक को ये पंकज त्रिपाठी को यहाँ पे यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताओ रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी ये एक इवेंट हुआ, लखनऊ में हुआ। लखनऊ का है? यूपी में हुआ, राइट। एंड ये बर्थ एनिवर्सरी थी, किनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हुआ? तो सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे हमें ये देखने को मिला। नेक्स्ट, इन नवंबर धुरबा नारायण घोष जो कि डीएन घोष हैं, ये फॉर्मर चेयरमैन थे ऑफ डैश बैंक जिनका निधन हो गया। तो ये फॉर्मर चेयरमैन थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जिनका रिसेंटली अभी निधन हो गया, और ये 12वें फॉर्मर चेयरमैन थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जिनका भी निधन हो गया, राइट। 1985 से लेकर 1989 तक ये यहाँ पे इस पोजीशन पे थे ऑफ द चेयरमैन ऑफ एसबीआई। एंड 95 की एज में इन कोलकाता वेस्ट बंगाल इनका निधन हो गया। एंड 1928 में कोलकाता इन वेस्ट बंगाल ओनली इनका जन्म हुआ था। फिर उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जिनकी खुद की अपनी एक सैटेलाइट है, तो वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटी है जिनकी अपनी खुद की एक सैटेलाइट रहेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन या कंपनी इन्होंने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के साथ टू एम्पावर एंड प्रिपेयर द यूथ फॉर द एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। तो याद रखेंगे तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। दसॉल्ट एयरक्राफ्ट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन तीनों ने अभी रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स एंड एम्पावर एंड प्रिपेयर द यूथ फॉर द एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, विच स्टेट हैज रिसीव्ड जीआई टैग फॉर कैश्यूज। नेक्स्ट, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म अभी डेवलप किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एंड तीसरा, एनएससी ने साइन किया एक एमओयू किस स्टेट के साथ टू हेल्प स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ताकि वो फंड रेज कर सकें थ्रू द कैपिटल मार्केट। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। एंड चौथा क्या था, आपको रिवर का नाम बताना है जिसके नीचे पहली अंडर वाटर मेट्रो सेटअप की गई थी, राइट। तो ये 4 क्वेश्चन जल्दी से नीचे कमेंट करके बता दो। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं मुझे सबका यहाँ पे पार्टिसिपेशन चाहिए, right? So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.